हेलो, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज रिकवरी का आगे का टॉपिक हम लोग समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे लॉग और चेक पॉइंट्स। ठीक है, आज इसी को आगे बढ़ते हैं। उसमें 3 ऑपरेशन है जो हमको समझना है: डू, अनडू एंड रीडू। डू, अनडू, रीडू क्या है कि जब भी किसी डेटाबेस की किसी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, मीन्स डेटाबेस इज ब्रॉट इनटू अ न्यू स्टेट, दैट इज डन विद द डू ऑपरेशन। If any transaction changes the state of the database, that is done with the do operation. Means to change the state of database from old to new one. यानी किसी वैल्यू को अगर चेंज कर दिया तो that is called do operation. Now undo operation क्या है और redo operation क्या है? अगर कोई ट्रांजैक्शन अपने से खुद से एरर ढूंढ के निकाल लेता है, तब उस ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है? रोल बैक करना होता है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन गया, काम कर रहा है, तो क्या करेगा? इसको रोल बैक कर देगा। ठीक है, दैट इज रोल बैक। अगर रोल बैक करना पड़ गया तो ये रोल बैक किसके थ्रू होगा? अनडू ऑपरेशन के थ्रू। रोल बैक को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल ऑपरेशन। Suicidal operation. Okay. It means if any change is made in the volatile storage, okay, and that is uncommitted, in that case we have to apply undo operation. Okay. Say यहाँ से ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया और ये आगे बढ़ता गया। एक ट्रांजैक्शन T1 आया, यहाँ खत्म हो गया। T2 आया, यहाँ खत्म हो गया। T3 आया, यहाँ खत्म हुआ। T4, ये T5। ओके, this is the time when system crashed. So at the time of system crash, the transactions that could not be committed, okay, the transactions that could not be committed at the time when the system crashed has to be undone. ओके, वहां पर क्या होगा? अनडू ऑपरेशन होगा। क्लियर? रीडू ऑपरेशन कब होगा? जब सिस्टम क्रैश हुआ उसके पहले जितना भी ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, जैसे कि लॉग बेस्ड रिकवरी में होता है या चेक पॉइंट में भी जो कमिट हो चुका क्रैश के पहले और लास्ट चेक पॉइंट के बीच में, तो जो जो ट्रांजैक्शंस कमिट हो गया, meaning thereby those values have been written to the non-volatile storage, that is the secondary memory. तो ऐसे committed transaction को अब redo करना पड़ता है। Am I clear? Those transactions that have been committed and written to the stable secondary memory, non-volatile storage, those transactions have to be redone. Okay, and this is called kill or murderous operation. Murderous operation. Here transaction does not detect itself the error. The system detects the error. Okay. So in that case,
all those transactions that have been committed prior to the system crash has to be redone. So here we have to perform, the system has to perform the redo operation. I think it should be clear. Those transactions that was uncommitted, that were uncommitted at the time of system crash, has to be undone. And those are on volatile storage. Okay? And those transactions that committed prior to the system crash and have been written on the secondary memory on the non-volatile storage have to be redone. Means these transactions have been written on non-volatile storage. These transactions have to be redone. यहाँ पर क्या होगा, रीडू ऑपरेशन लगाना होगा. जो ट्रांजैक्शन वोलेटाइल स्टोरेज में था और सिस्टम क्रैश के समय में वो जैसे T5 और T4, वो क्या होगा, अंडू होगा. T4 एंड T5 ये अंडू होगा, because at the time of system crash these were still continuing, these were not committed. और सिस्टम क्रैश के पहले जो जो ट्रांजैक्शंस कमिट हो गया वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में लिखा जा चुका है, उसको फिर से करना होगा, तो वहां पर रीडू ऑपरेशन लगेगा. ओके. नाउ अनदर फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. एट द टाइम व्हेन द सिस्टम क्रैशेस, the system prepares an undo list, and in this undo list all the transactions are written. Say T1, T2, T3, T4, T5. Okay? And now from this undo list, the list is segregated T1, T2, T3, and there will be a redo list T4 and T5. T4 and T5. Undo T1, T2 and T3 will be in redo list. Undo and redo are idempotent, means it is done iteratively, meaning thereby the undo or redo operations are done so many times, as many times as it is required. Say undo, undo, undo any action, any action. This is idempotent. Okay. Similarly, redo is also idempotent. Redo, redo, redo any action. This is also idempotent. Okay. Now, some terms we have also to understand further. दो चार टर्म्स हम लोग और समझते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है. टर्म सभी समझना जरूरी है. एक है फिजिकल डेटाबेस, दूसरा करंट डेटाबेस, तीसरा आर्काइव डेटाबेस, ओके. और चौथा है मैटेरियलाइज्ड डेटाबेस. ये चार टर्म्स हम लोग समझते हैं. फिजिकल डेटाबेस, करंट डेटाबेस, आर्काइव डेटाबेस या आर्काइवल डेटाबेस और मटेरियलाइज्ड डेटाबेस. फिजिकल डेटाबेस क्या है? दिस इज द ऑनलाइन कॉपी ऑफ द डेटाबेस on which the changes are recorded on non-volatile storage.
online copy of the database, that is on non-volatile storage. Non-volatile storage. चेंज होने के बाद सॉरी, सिंपल भाषा में हम ये समझे कि जब हम किसी डेटा वैल्यू को चेंज करते हैं तो फाइनली इट इज रिटन ऑन टू द फिजिकल डेटाबेस, दैट इज ऑन सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. दूसरा है करंट डेटाबेस. करंट डेटाबेस इज द फिजिकल डेटाबेस प्लस डेटा इन बफर्स. इन दोनों को मिला के हम कहते हैं करंट डेटाबेस. मीन्स हम जो काम करते हैं उस डेटा को निकाल के कहाँ ले आता है, ये बफर में ले आता है, we make the changes in the buffers and then we write back to the physical database. यानी अगर फिजिकल डेटाबेस को हम बफर्स के साथ भी रख देते हैं तो हम तब उसको समझते हैं कि इट इज अ करंट डेटाबेस. तो जैसे हम अगर समझेंगे कि करंट डेटाबेस, वी आर वर्किंग द करंट डेटाबेस, इट मीन्स कि हमने फिजिकल डेटाबेस से डाटा निकाला है, उसको बफर्स में डाला है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट बफर, इन दैट बफर. ओके, और जब फिर हम डेटा का करेक्शन कर लेते हैं, इट इज रिटन बैक टू द फिजिकल डेटाबेस, इट इज ऑनलाइन कॉपी ऑन द सेकेंडरी मेमोरी, देन इट इज द फिजिकल डेटाबेस. आर्काइव डेटाबेस ये हमारे स्टेबल स्टोरेज में स्टोर होता है, दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल एंड इट इज यूज्ड इन केस ऑफ लॉस फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी. यानी अगर कभी लॉस हो गया किसी कारण से, तो जब हमें रिकवरी करनी होगी, इन दैट केस वी यूज आर्काइव डेटाबेस एंड इट इज इनएक्सेसिबल टू जनरल यूजर्स. ओके, एंड दिस रिमेन्स इन quiescent mode, means no transactions take place on this database, archive database. And finally is the materialized database, means the database when gets damaged, the database when gets damaged for any reason, and in that database the portion that remains unchanged, the portion of the database that remains unchanged, others are damaged, others have corrupted or unwillingly modified, data has been lost, we are not considering that portion. ये खराब हो गया, डेटा करप्ट हो गया, डेटा बदल गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, लॉस्ट हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो पोर्शन इसका अनचेंज्ड रह गया, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, that is called materialized database. अगर ये है तो यह भी ठीक है. इसलिए ठीक है कि we are not in the doubtful situation, we can rerun the transactions and can get the updated values, but this might lead to confusions. ठीक है, ये टर्म्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं. फिजिकल डेटाबेस मतलब समझेंगे वो डेटाबेस जिसमें हम अपडेट करके रखते हैं, जो हमारे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में है. और करंट डेटाबेस का मतलब क्या है, फिजिकल डेटाबेस प्लस बफर दैट इज इन वोलेटाइल मेमोरी. और आर्काइव डेटाबेस जो सबके एक्सेसिबिलिटी में नहीं होता, इसके अंदर जो डेटा है दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी इन केस ऑफ लॉस, जो कि स्टेबल स्टोरेज में होगा और क्विसेंट मोड में होगा. क्विसेंट मोड मीन्स नो ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन दिस डेटाबेस. और फाइनली द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द डैमेज डेटाबेस इज कॉल्ड materialized database. Okay. एक टर्म यूज होता है करंट लॉग और दूसरा आर्काइव लॉग. दूसरा आर्काइव लॉग. यानी जो हम करेंटली अभी काम कर रहे हैं उसके लॉग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हम लोग रखते हैं करंट लॉग में, और जो हम स्टोर कर चुके हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग रखते हैं आर्काइव लॉग में. इसको दूसरे शब्द में समझे तो जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉग इंफॉर्मेशन है दैट इज इन वोलेटाइल स्टोरेज,
is contained in current log, and the portion of data that is stored on the secondary memory on the physical database, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज में है, उसके लॉग का इंफॉर्मेशन क्या होगा, आर्काइव लॉग में होगा। हमने कौन सा डेटा एक्सेस किया, क्या चेंज किया, वो सारा इंफॉर्मेशन आर्काइव लॉग में होगा। और वॉलेटाइल स्टोरेज में जो कुछ भी काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी लॉग इंफॉर्मेशन है वो करंट लॉग में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे शैडो टेबल।